I've told you in the first video, that is, the book is of Candid ICSE Biology, and total 2 videos has been made on this chapter for first 2 pages. So in the first video we have studied that what is circulatory system, all the parts of the body जो help करते हैं transportation of various materials, that particular system को हम circulatory system कहते हैं. फिर हमने पढ़ा था first video में that circulatory system में fluids in the body कौन से होते हैं. टोटल फुली ग्रोन ह्यूमन बॉडी में 40 लीटर फ्लूइड होता है, जिसमें से 25 लीटर फ्लूइड दैट इज नोन एज इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है, ठीक है, अंदर जो सेल्स में होता है, एंड देन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 15 लीटर होता है. देन हमें ये बताया दैट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो 3 प्रिंसिपल टाइप्स के, दैट इज ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ. ब्लड के बारे में भी आई हैव ऑल्सो told in the first and the second video. Then what is tissue fluid, colorless fluid, I have told in the first video. Then lymph also I have explained. Okay, so we're just revising, and then in the second video I have told about the blood and the composition of blood and the functions of blood. Now in the third video we'll start with the formed cellular elements, and basically हम blood पे ही थे in the second video. So composition of blood में plasma और formed cellular elements आते हैं. Composition of blood consists of 2 major parts, which is plasma and formed cellular elements. हम प्लाज्मा कर चुके थे, and let's just revise first, क्योंकि हम ब्लड से करें तो let's just revise about the composition of blood. Now composition of blood में 2 major parts हैं. The first is plasma and the second is formed cellular elements. प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का टोटल 50 to 60% लेता है जगह. ओके, नाउ प्लाज्मा का फटाफट लेट्स जस्ट रिवाइज. ओके, प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है किसका, ऑब्वियसली ऑफ ब्लड. ओके, एंड देन वी हैव कि प्लाज्मा एक स्लाइटली येलो कलर्ड है, अल्कलाइन इन स्ट्रक्चर है. ओके, इट्स फॉर्म्स 50 to 60% ऑफ टोटल ब्लड. टोटल ब्लड का कॉम्पोजिशन 50 to 60% है. ये स्टिकी है, स्लाइटली हेवियर देन वाटर है. 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर. देन इसमें 7 to 8% प्रोटीन्स है, 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमारा सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट है. ब्लड प्रोटीन्स भी है प्लाज्मा में, विच इंक्लूड एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन. देन इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट्स, हार्मोन्स एंड गैस लाइक ऑक्सीजन, CO2 है. सो वी वर जस्ट रिवाइजिंग about plasma, that is the first major part in the composition of blood, जो मैंने second video में इसका पूरा explanation दिया है. And even I have explained about the functions of blood in the second video. The first is transport of digested food, transport of oxygen, carbon dioxide, then transport of metabolic waste, transport of hormones, transportation of heat, homeostasis, and then protection. Okay. So now अब हम third part of the chapter में formed cellular elements के बारे में पढ़ेंगे, which is the second major part in the composition of blood. So let's start with the video now. We have just revised that what have been studied earlier. So now formed cellular elements, ये नाम से पता चलता है कि ये कुछ बने बनाए elements है. Formed and even known as cellular elements, cellular bracket में, which means ये दोनों names है. Now formed cellular elements के बारे में कहा गया है that they are actually shaped structures. ठीक है, ठीक है, which are visible under the microscope as cells or cell-like structures present in the blood. Shaped structures बताया था. Formed cellular elements are shaped structures. नाम से ही पता चलता है ये कुछ बने हुए हैं, formed है, cellular है, इसलिए shaped structures as a definition में आ जाता है. तो ऐसे ही याद हो जाएगा मैं that formed cellular elements are shaped structures that are visible under the microscope as cells or cell-like structures present in the blood. अब composition of blood के बारे में पढ़ रहे तो obviously blood में present होगा. Okay, now they form 40 to 45% of blood. 40 to 45% of blood ये फॉर्म करते हैं. प्लाज्मा ने ऑलरेडी 50 to 60% ले लिया था, तो जो बच्चा होगा वो बेचारा फॉर्म सेलुलर एलिमेंट्स लेगा ब्लड में कॉम्पोजिशन में, तो इट इज़ 40 to 45% ब्लड. अब सेलुलर एलिमेंट्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं. ठीक है, दे आर ऑफ 3 टाइप्स. पहला हमारा है RBCs. Now new name has been taken, that is erythrocytes. RBCs का full form that is red blood corpuscles. Okay, and then is erythrocytes का नया name which we'll be using. Okay, and then WBCs जिसका name है leukocytes, and the third is हमारा blood प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं.
सी टिल नाउ सारे क्लासेस में वी यूज्ड WBCs एंड RBCs. नाउ न्यू नेम्स, एक्चुअली न्यू नेम्स नहीं है, ये नेम्स अलग अलग नाम दे रखे हैं, बट नाउ वी यूज दीज पर्टिकुलर नेम्स बिकॉज ये ज़्यादा अच्छे हैं. ओके, सो नाउ RBCs को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. नाउ RBCs का फॉर्मूला यू नो, रेड ब्लड corpuscles, white blood corpuscles and blood platelets. Why? Okay, so now first we'll talk about the first part. Okay, that is erythrocytes. Don't get confused with the name. Erythrocytes वही है हमारे RBCs, which is red blood corpuscles. Okay, so now we'll start with the erythrocytes. पहले तो intro दे रखे कि इसमें है क्या. Okay, so I'm just writing as by point. Okay, पहली चीज़ रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स, दे आर वेरी स्मॉल. पहली चीज़ तो ये स्मॉल है, सॉरी आई एम जस्ट सेइंग स्मॉल है. ठीक है, मेजर्स अबाउट 7.7 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, बहुत छोटे है बेचारा. ठीक है, सो रेड ब्लड कॉर्पसल्स 7.7 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर है. ठीक है, दे आर बाय कॉन्केव. बाय कॉन्केव मीन्स टू साइड दोनों तरह से कॉन्केव्ड है. ठीक है, 3 disc-like structures are then denucleated. Denucleated means deprived of nucleus. Deprived of nucleus मतलब nucleus नहीं है. ओके, ठीक है, denucleated cells है in the mammalian blood. So prejudice erythrocytes are very small. ठीक है, 7.7 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर है. दे आर बाइकॉन्केव डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर्स, डीन्यूक्लिएटेड सेल्स है विच इज इन द मैमेलियन ब्लड. ये सब बताया गया था कि दिखते कैसे. नाउ RBCs आर द मोस्ट अबंडेंट ऑल ऑफ द 3 टाइप्स. ये तीनों में से नो दे आर द मोस्ट अबंडेंट वन, मतलब सबसे ज़्यादा RBCs है. ओके, नाउ हमें बताया गया देयर अबाउट 5 to 5.4 million millimeter in blood of a man, 4 to 4.5 million millimeter in the blood of a human. So now RBCs कितने किस्में हैं. ओके, पहली चीज़ है दे हैव टोल्ड ना मैन में दे आर अबाउट 5 to 5.4 million millimeter cube in the blood. Okay, RBCs एक मैन के ग्रोन अप मैन के ब्लड में 5 to 5.4 मिलियन मिलीमीटर क्यूब RBCs है. ओके, देन एक वुमेन 4 to 4.5% million meter cube in the blood. Okay, now what happened, young immature RBC contain nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum and other organelles. So now ये तो composition था men and women का. Now we are telling about young immature RBCs. Now what happened, जितने young immature RBCs मतलब erythrocytes. Okay, young mature RBCs जो है उनमें क्या क्या होता है, उनमें न्यूक्लियस होता है. अभी हमें बताया गया था कि ये डीन्यूक्लिएटेड है, लेकिन डीन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं, अभी यही बताया गया था RBC में. अभी हमने पढ़ा था दैट erythrocytes denucleated cells which means deprived of nucleus, but now they are saying young immature RBCs which means यहाँ पे सिर्फ RBC की बात हो रही थी, means erythrocytes मतलब नाम वही है. ओके, अब यहाँ पे हम immature RBCs के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब छोटे RBCs young. ठीक है, जो न्यू बॉर्न्स है. ओके, उनमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है एंड अदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं. बेसिकली ये सब हमारे RBC में नहीं होता ना, कहा था न्यूक्लियस नहीं है, बट यंग मैच्योर इमैच्योर RBCs को देखे जाए तो उसमें न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर ऑर्गेनल्स भी है. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स, ये सब यंग इमैच्योर RBCs हैं. अब जब RBCs मैच्योर होते हैं विच मीन्स जब आता है टाइम दैट ये RBCs बड़े होते हैं, विच मीन्स दैट ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब ये इमैच्योर RBCs मैच्योर होते हैं, ये जितने भी ऑर्गेनल्स के नाम मैंने लिए ना कि जो यंग इमैच्योर में है, ये सब दे डिसअपियर. ओके, गायब हो जाते हैं.
they disappear. Now why do they disappear? There is a give reason that why do they disappear during maturation of RBCs. यंग इमेच्योर आरबीसी में ये ऑर्गेनल्स होते हैं, मैच्योरेशन के टाइम पे दे जस्ट डिसअपियर. एंड व्हाई डू दे डिसअपियर? देयर इज अ रीजन. दे disappear. Okay, they disappear so as to, so now I but during maturation these organelles disappear so as to accommodate more hemoglobin for the transportation of oxygen. Now young immature RBCs जो जो organelles होते हैं वो maturation time पे disappear हो जाते हैं, and they disappear so as to accommodate more hemoglobin for the transportation of oxygen. Now first reason, ये reason है अपना, that is that why do the organelles disappear during maturation of RBCs? So that they can accommodate more hemoglobin for the transportation of oxygen. Now we know कि oxygen लेता कौन है? hemoglobin लेता है, जैसे lungs में oxygen आता है. So hemoglobin को ज़्यादा space मिले transport of oxygen के लिए, इसके लिए disappear हो जाता है. Moreover, small size and concavity on the either side of these cells provide more surface area for the efficient absorption of O2. Now एक बहुत ही अच्छा, इनमें देखो ये small size के हैं, इनमें concavity है, which means space अच्छा मिल जाता है. ठीक है, so एक advantage हमारे red blood cells का that small size and concavity on either side of these cells, on either side of these cells, okay, provide more surface area for the efficient absorption of O2. Efficient absorption of O2. Now during maturation ये सारे organelles disappear हो जाते हैं and they disappear so as to accommodate more hemoglobin for the transportation of oxygen. Small size and concavity on the either side of these cells provide more surface area for the efficient absorption of oxygen. Now see, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, let's revise again. RBCs very small है, measuring about 7.7 micrometer in diameter है. They are biconcave disc-like structures, denucleated cells. Denucleated means deprived of nucleus and in the mammalian blood. Okay. Then हमने पढ़ा that RBCs man में 5 to 5.4 million millimeter cube होता है and women में 4 to 4.5 women. Okay. Then young immature RBCs जो होते हैं उनमें nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum and other organelles होते हैं, but during maturation they disappear so as to accommodate more hemoglobin for the transportation of oxygen. And ऊपर से जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का स्मॉल साइज, उनका कॉन्काविटी ऑन द ईडिस ऑफ द सेल्स है, वो हमें एक ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है जिससे एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन हो सके. और ये सब डिसअपियर हो जाता, स्मॉल साइज बच जाता है आरबीसीज का. तो ये सब जो डिसअपियरिंग होता है दैट इज इन द यंग इमेच्योर आरबीसी. वरना आरबीसीज में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इमेच्योर आरबीसीज में होता है जो डिसअपियर हो जाता है मैच्योरेशन के टाइम पे. Erythrocytes are red in color because of the presence of respiratory pigment called hemoglobin. Now RBCs का नाम क्या है? Red blood corpuscles. Now उनमें red color जो आया है that is because of a pigment, okay, which is in red in color, जिसका नाम हमारा hemoglobin है, as short form HP. Okay, it is present in the colorless punctate body or stroma of the RBCs. Now it is composed of hematine and iron containing pigment and globin a protein. Now hemoglobin में दो parts हैं, पहला है हेमेटिन एंड दूसरा है ग्लोबिन.
ग्लोबिन एक प्रोटीन है एंड हेमेटन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। उसी से हमारा हीमोग्लोबिन है। ओके, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या है ये चीज़ है। Now hemoglobin has great affinity for oxygen. It forms an unstable compound oxyhemoglobin with oxygen. Now hemoglobin जो है it has a great affinity for oxygen. तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, that is oxyhemoglobin. ठीक है। Now ये जो oxyhemoglobin है that dissociates into hemoglobin and oxygen in the body tissues and oxygen is supplied to the cells. Now what happen, hemoglobin जो होता है ऑक्सीजन को absorb करता है, एक कंपाउंड बनाता है that is oxyhemoglobin, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, अब ये oxyhemoglobin क्या करता है, ये dissociate into, ये हमारा डिसोसिएट करता है वापस ऑक्सीजन में और हेमोग्लोबिन। सो नाउ ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारा डिसोसिएट होता है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में, कहाँ जाने पर, टिश्यूज़ में जाने पर, जैसे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। ऑक्सीहीमोग्लोबिन टिश्यूज़ में जाके डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, जिससे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल सके। ओके, तो बेसिकली ऑक्सीहीमोग्लोबिन का क्या काम है कि वो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ओके, now it can carry very small amount of CO2 in the form of carbaminohemoglobin. now hemoglobin जो है हमारा वो CO2 के साथ भी मैच होता है बट थोड़ा कम अमाउंट कैरी कर पाता है। ओके, इट कैन कैरी अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ, इसका भी एक नाम दे रखा है दैट इज कार्बोमाइनोहेमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीहेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बनता है, वैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोमाइनो हेमोग्लोबिन। ओके, जिसमें CO2 होता है। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला HbCO2। ओके, सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा दैट वाज अबाउट द इंट्रो ऑफ RBCs। RBCs स्मॉल है, 7.7 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर है, बाइकॉन्केव है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है, डीन्यूक्लिएटेड सेल्स है। वुमेन और मैन के बारे में बताया गया कि उनमें कितने RBCs होते हैं, एंड देन इमेच्योर RBCs के अंदर क्या क्या होता है, वो क्यों डिसअपेयर करते हैं, जैसे ज़्यादा स्पेस मिल सके, एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन हो सके। देन ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन टिश्यूज़ में जाके वापस ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में डिसोसिएट हो जाता है, जैसे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिले। और हेमोग्लोबिन यही सेम चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करता है, बट ऑक्सीजन वो ज़्यादा लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम लेता है। ओके, ये सब इंट्रो था अबाउट द RBCs। नाउ वी आर कमिंग ऑन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ना एरिथ्रोसाइट्स वही है हमारा RBCs, अब तक वही पढ़ा था, वही था। जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज विद द टू नेम्स। ओके, दोनों सेम है। सो नाउ पहला फंक्शन है इसका दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। से अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है, हमारे RBC के अंदर होता है। ओके, वही है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे हेल्प कराता है? Hemoglobin in the cytoplasm of erythrocytes helps in the transportation of oxygen from the respiratory organs to the body cells. अब जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? इन द साइटोप्लाज्म। हीमोग्लोबिन इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, इट हेल्प्स एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इन द transportation of oxygen from the respiratory organs to the body cells. Now see, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है एंड लंग से ऑक्सीजन जो लेता है वो हमारा हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन हेल्प करता है एरिथ्रोसाइट्स को, ठीक है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू बॉडी सेल्स, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा लंग्स तक आता है, लंग इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वहाँ से हेमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट्स को हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेता है, फिर एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, फिर टिश्यूज में जाके वापस डिसोसिएट होता है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एरिथ्रोसाइट्स को कौन? हेमोग्लोबिन हेल्प करता है।
जिससे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कर सके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू बॉडी सेल्स। सेकेंड वही हमारा दैट इज, अब जब हम सांस लेते हैं तो ऑब्वियसली वी डोंट टेक प्योर ऑक्सीजन इन द एयर, ओके। हम हमारे ऑक्सीजन के साथ CO2 एंड अदर गैसेस भी होती है जब हम सांस लेते हैं, ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अबाउट 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल्स is carried from tissue to respiratory organs for the its elimination by erythrocytes. See, basically हर चीज़ जो कैरी आउट हो रही है वो एरिथ्रोसाइट्स कर, दैट इज RBCs। RBCs रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो हमारे बॉडी के अंदर जाते रहते हैं। ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स जो खून, ओके, वही तो होता है, ओके। सो ये जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और CO2 को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं, बट बेसिकली ऑक्सीजन को लेता कौन है? हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के फॉर्म में, दैट इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, RBCs पे फ्लो होता है एंड वही ट्रांसपोर्ट कराता है। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करता है एंड बाकी सब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एरिथ्रोसाइट्स करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करता है। पूरी बॉडी में ब्लड ही होता है ना, और उसके अंदर ही हमारे एरिथ्रोसाइट्स होता है, ओके। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे एरिथ्रोसाइट्स काम आते हैं। एंड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाते किसके फॉर्म में है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन के साथ जाते हैं बन के, ओके। तो दिस वाज द फंक्शंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट कराने में, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। Then we are coming on formation, life and destruction of RBCs. Now उनका formation कैसे होता है, इनकी life कितनी है, and then destruction of RBCs. About 1% RBCs are produced daily in our body. रोज हमारी बॉडी में टोटल 1% RBCs are produced, okay? And the same number is 1, और इतने ही सेम नंबर हमारे रोज जाते भी मरते वहीं आता है, ठीक है। In adults, the erythrocytes are produced in the red bone marrow of long bones, especially in ribs, breastbone, and ilium of hip bones. Ilium is the largest part of the hip bone. Okay, that is the upper part. Now, so erythrocytes जो होता है ना, वो हमारा जो मतलब adults में, if we talk about adults, तो जो RBCs होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? सॉरी, RBCs, okay? ये बेसिकली फॉर्म होते हैं कुछ बॉडी पार्ट्स में, मेनली वहीं पे, ठीक है। पहला है बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, ओके, वहाँ पे फॉर्म होता है। देन स्पेशली इन रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ हिप बोन। सी रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन सब दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट चेस्ट पार्ट, ओके। एंड इलियम ऑफ हिप बोन्स इज एक्चुअली हिप बोन, जो बैक साइड का पार्ट है हिप बोन में, दैट इज द अपर मोस्ट पार्ट और सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिप बोन, जो हम इलियम कहते हैं। इन पार्ट्स में टोटल RBCs अडल्ट में फॉर्म होता है, ओके। इट्स टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स ओनली। इन एन एम्ब्रियो दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड स्प्लीन, okay। Now in embryo what happens? Just we're talking about the adults, now we are coming on embryo, okay। Embryo, they are produced in liver and spleen. Spleen is a lymphatic organ. Now during maturation, the erythrocytes in mammals lose their nuclei, mitochondria, endoplasmic reticulum, etc. to accommodate more hemoglobin. ये हमने पढ़ा था कि maturation में ये सब एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो अपने न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस चला गया, जैसे रोल कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल वो चला गया, तो जो हमारी लाइफ ऑफ एरिथ्रोसाइट्स रिड्यूस हो जाती है सिर्फ 120 डेज। मतलब न्यूक्लियस के मरने के बाद एरिथ्रोसाइट सिर्फ 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। द वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। जो वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है, वो सब डिस्ट्रॉय किस में होते हैं? लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। सो जो RBC, जो वॉर्न आउट RBCs है, उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? और डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं? बेसिकली वो होते हैं लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। देयर आयरन पार्ट इज स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स। अब RBCs का जो आयरन पार्ट होता है, ठीक है, वो लोग लिवर सेल्स में स्टोर हो जाता है, वेयर एज द रेस्ट इज एक्सक्रीटेड एज बाइल पिगमेंट्स। जो बाकी बचता है, मतलब RBCs को क्या है, डिस्ट्रॉय करने के लिए लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो यूज होता है, एंड लिवर सेल्स में उनका आयरन पार्ट स्टोर हो जाता है। बाकी जो बचता है वो बाइल पिगमेंट्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। नाउ व्हाट इज बाइल पिगमेंट्स? सी, बाइल पिगमेंट्स एक बाइल जूस है जो लिवर से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। एंड लिवर के अंदर जो
वन और आरबीसी जो बचे होते हैं वही होता है जो बाइल जूस में आता है, जिसे हम बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन कहते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फर्स्ट टाइप पढ़ा, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसेस और एरिथ्रोसाइट्स. In the next video, we'll talk about the second type of formed cellular elements, which is WBCs, that is white blood corpuscles, and even known as leukocytes.